Okay, if the screen is visible to you all. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Okay. Let us discuss some of the questions of SSC JEE from the design compression member chapter only. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किए थे आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, हम लोग तेजी से निकलेंगे ताकि फिर आगे और क्वेश्चंस कर सके। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटेंड कॉलम इज इंक्रीज्ड बाय 10%. 10%, sir. गुड। अच्छा, अगर ये लेसिंग कॉलम होता तो क्या होता? 5%. 5%. Good. As per the code, the slenderness ratio of the lacing bars for compression member should not exceed 145. 145, sir. good. An electric pole is 5 meters high and it is fixed to the ground. It carries a wire at the top and Sir, 10 meter हो जाएगा. free to move Pass Junaid sideways Das. over there. हाँ, the effective length of the pole is one end is fixed, another end is free वाला केस होगा. L Yes, sir, effective equal to 12 हो 12 हो जाएगा. जाएगा. हाँ, तो Yes, 5 sir. into 2 10 हो जाएगा. ठीक है, good. A column splice is used to increase Length of column. Length of column. length of column. ठीक है. और ये जो स्प्लाइसिंग करते हैं ये फ्लैंज में करते हैं या वेब में करते हैं? वेब में। ये दोनों में हो सकता है ना? ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें देखना होगा. हाँ, फ्लैंज में भी कर सकते हैं, वेब में भी कर सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. Maximum value of slenderness ratio of lacing flats in a steel column is 145। 145. ठीक है. 145, sir. As per IS 800/1984, the lacing of compression member shall be proportion to resist a total transverse shear S equal to at least how much percent of axial 2.5% of axial load. 2.5, sir. 2.5% of axial load. As per codal provisions, the effective buckling length of a cantilever steel column of length L is given by Sir, 12. 12. 2.0. effective buckling length of a cantilever steel column. Okay, cantilever, one end is fixed, another end is free. 103. The lacing bars in a steel column should be designed to resist how much percent of column load? Sir, 2.5. Sir, 0.5, sir. 2.5% of column load. Good. The effective slenderness ratio of laced columns compared to actual maximum slenderness ratio shall be considered as 1.05 times. 1.05 times. हाँ, अगर ये पूछा जाता है कि कितना परसेंट इंक्रीज होगा तो Sir, 5% increase होगा. 5%, sir. good. The slenderness ratio of a lacing bar should be less than 145. Sir, 145. 145, sir. 145. A slender section buckles locally. yield moment के पहले होगा, yield moment पर होगा, yield moment के बाद होगा. Sir, Before before reaching the yield yield moment, sir. moment, sir. 3 number, sir. है ना? हाँ, पहले before होगा. reaching yield moment. क्योंकि yield moment तक पहुंचेगा, इसका मतलब वो तो फिर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पे बकल करेगा, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पे Yes, sir. फेल करेगा. लेकिन जब बकलिंग क्राइटेरिया पे फेल कर रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से पहले फेल करेगा, है ना? तो yield moment पहुंचने Yes. से पहले फेल करेगा. गुड. Which one of the following factors does not affect the lateral buckling strength of a steel I section undergoing bending about its major axis?
Radius of gyration about the major axis of the section. हाँ, क्योंकि वो अफेक्ट किस पे होता है, माइनर एक्सिस के रेडियस ऑफ गायरेशन से अफेक्टेड होता है ना, मेजर एक्सिस Yes, के sir. रेडियस ऑफ गायरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड। The effective length of a steel column is effectively held in position and restrained against rotation at both ends is, Sir, 0.65 L. IS है कोड ना? वाला। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे ऑप्शन तो सी और डी तो दोनों हो दोनों दिया सकता हुआ है, है। 0.5 एल भी होगा, 0.65 एल भी होगा, लेकिन दोनों ही सही है। लेकिन अगर इन दोनों सही में से अगर हमें एक ज्यादा सही चुनना होगा तो हम, है ना, आईएस कोड के हिसाब से चलेंगे, 0.65 आईएस कोड L. 800/2007 के हिसाब से ये हो जाएगा 0.65 एल। ठीक है, हम यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू के ऊपर, है ना, आईएस कोड रिकमेंडेड वैल्यू को प्रीफर कर रहे हैं। The permissible bending stress in working stress method of design of column base is considered equal to 0.75 FI. 0.75 FY। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे जैसे कंफ्यूजन हो सकता है कि बेंडिंग स्ट्रेस है तो 0.67 FY हो जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही जब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करोगे तो उसमें लिखा है ऑफ डिजाइन ऑफ कॉलम बेस इज कंसीडर्ड, है ना, कॉलम बेस की बात हो रही है। तो कॉलम बेस पर जब Yes, भी sir. लोड आएगा तो वो क्या होगा, बियरिंग के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ठीक है, और जैसे ही बियरिंग के फॉर्म में अगर ट्रांसफर होगा तो बियरिंग के लिए 0.75 FY होता है। ठीक है, compression members always tend to buckle in the direction of, Yes, radius of gyration. है ना, जिस एक्सिस के अलोंग रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम होगा, है ना, उसके अलोंग वो बकल करेगा। ठीक है, जब रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम होगा किसी एक्सिस के अलोंग तो उस एक्सिस के अलोंग स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम सर एक बार रिपीट कीजिए ना इसको। अगर मैक्सिमम किसी सर। एक्सिस के अलोंग रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम हो रहा है तो उसी एक्सिस के अलोंग स्लेंडरनेस रेशियो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम होगा। Maximum, sir. है ना, क्योंकि स्लेंडरनेस मैक्सिमम रेशियो इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम होता है ना। आर मिनिमम। ठीक, the slenderness ratio of a column is 0 when its length, ठीक है, इफेक्टिव अच्छा हाँ, स्लेंडरनेस रेशियो 0 होगा, कब होगा बताओ? सर इफेक्टिव लेंथ इक्वल होगा तो सर एक्चुअल लेंथ। जब सपोर्ट और सब चारों तरफ से उसको फिक्स कर देंगे, मींस सपोर्ट ऑन ऑल साइड थ्रू आउट दिस लेंथ। यस लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, है ना, थ्योरी में, तो Yes, तुम लोगों sir. को याद होगा। ठीक है, अब चलो नहीं भी याद है तो अभी यहाँ फिर से एक बार देख लो, स्लेंडरनेस रेशियो का मतलब क्या हुआ, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, तो कब कब हो सकता है स्लेंडरनेस रेशियो 0, या तो एल इफेक्टिव का वैल्यू 0 हो जाए या फिर आर मिनिमम का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है ना, तो रेडियस ऑफ गायरेशन तो कभी इन्फिनिटी होगा नहीं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि तुमको ये, तो एल इफेक्टिव का वैल्यू ही 0 होना होगा। तो एल इफेक्टिव का वैल्यू 0 कब होगा, जब चारों ही साइड से, है ना, हम लोगों ने पिछले क्लास में रोहित ने शायद बोला था डायग्राम बनाने के लिए, तो बनाए भी थे, है ना। Yes, sir. डायग्राम बना के सर समझाए थे। हाँ, जैसे मान लो कि ये तो हम लोग जान रहे थे कि ये होता है ना, कुछ इस टाइप से मान लो कि कॉलम है। ठीक है, और ये क्या है, दो साइड से अगर फिक्स है तो हो गया बोथ एंड्स आर फिक्स। अब इसी को क्या करोगे, एक बार इधर से भी फिक्स कर दो, सर एक बार इधर से। है ना, ये इधर से भी फिक्स कर दो और इधर से भी इस तरह से कैसे करके। ठीक है, तो जब ये चारों साइड से फिक्स हो जाएगा तो किसी भी साइड में क्या हो रहा है कि बकल करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं बच रहा है। ठीक है, किसी भी Yes, साइड sir. में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, किसी भी साइड में क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोई एल इफेक्टिव जैसा केस ही नहीं होगा, है ना, तो इसलिए कहीं से भी ये बकल ही नहीं करेगा। ठीक है, Yes, sir. गुड। तो आंसर हो जाएगा इसका, है ना, क्वेश्चन क्या है, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज 0 व्हेन इट्स लेंथ इज सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक है,
In single laced column construction, the thickness of the flat lacing bars should not be less than, 1/40 है ना, 1/40th of the effective length of effective single length of lacing. single lacing. अच्छा, अगर ये डबल लेसिंग होता तो 1/60 हो जाएगा सर. 1/60 सर. है ना, हाँ, मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार इट शुड नॉट बी, है ना, लेस देन क्या है, इफेक्टिव बाय 40 फॉर सिंगल लेसिंग बार कंस्ट्रक्शन, है ना, कॉलम कंस्ट्रक्शन, और इट शुड नॉट बी लेस देन एल इफेक्टिव बाय 60 फॉर डबल लेसिंग कॉलम कंस्ट्रक्शन. ठीक है. The slenderness ratio of lacing bars should not exceed 145. 145 sir. the Yes, sir, maximum 145. allowable slenderness ratio for members carrying compressive load due to wind and seismic force only is 250. ठीक है ना. हाँ, इसमें हम लोग जान रहे थे कि देखो ये कॉलम था, ये टेबल था, है ना, आईएएस कोड में हम लोग देखा था. ठीक है, जब हम लोग आईएएस कोड का डिस्कशन कर रहे थे तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक टेबल था जिसमें क्या था कि टेंशन मेंबर के लिए दो केस था, एक वैल्यू कुछ 180 था और एक वैल्यू 400 था, है ना. बाकी जो भी वैल्यू था 180 टू 250 300 350 ये सब किसके लिए था, कंप्रेसर मेंबर के लिए था. ठीक है, तो 180 किस केस के लिए था, 180 था जब डेड लोड और लाइव लोड की वजह से आएगा कंप्रेसर लोड, है ना. अच्छा, देखो यहाँ पर भी टेबल दिया हुआ भी है ना. जब देखो डेड लोड और लाइव लोड की वजह से अगर कंप्रेसिव फोर्सेस आ रहा है तो 180 हो जाएगा, और अगर अर्थक्वेक या विंड की वजह से आ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस तो वहां पर क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा. ठीक है, 300 कब क्या होगा, तो जब कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए बीम की बात होगी तो. ठीक है, जब लिखा है अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टेंशन मेंबर बट इन विच रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक, है ना. ओके, टेंशन मेंबर की वजह से बिहेव करेगा लेकिन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो रहा होगा, है ना, विंड और अर्थक्वेक की वजह से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा. ओके, तो ये टेबल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए. ठीक है, आप ये इजी लैंग्वेज में यहाँ पर दिया हुआ है, इस लैंग्वेज में भी आप याद कर सकते हो, या फिर हम लोगों ने आईएएस कोड में डिस्कशन किया था. ठीक है, तो आप लोग वहां से भी इस टेबल को देख सकते हो. क्वेश्चन है नेक्स्ट, द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कैंटिलीवर कॉलम इज, 12/R. 12/R. है ना. हाँ, ठीक है. Yes sir, 12/R. अच्छा, ये बेसिकली वो हो गया एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम वाला केस हो गया, तो एल Yes, इफेक्टिव sir. की जगह पर यहाँ पर 12 हो गया. ठीक है. In order to determine the allowable stress in axial compression, Indian Standard Institution has adopted. कौन है, Rankine रैंकिंस formula. फार्मूला है, सेकंड Rankine यूलर्स formula, फार्मूला, sir. Rankine formula sir. हाँ. Rankine. रैंकिंस फार्मूला. Rankine ठीक है. formula. If the depth of a section of an upper column is much smaller than the lower column, if the depth of the section of an upper column is much smaller than the lower column. अच्छा अच्छा, कॉलम स्प्लाइसिंग वाला केस होगा जिसमें कि अपर कॉलम का जो Yes sir, option B होगा इसका सर, लास्ट क्लास में समझा रहे. Yes, sir. Bearing a Filler filler. and bearing हाँ, ओके, are हाँ, अपर provided कॉलम जो है उस, हाँ, splice. वो थोड़ा सा पतला है, और जो लोअर कॉलम है वो थोड़ा सा थिक है इसकी तुलना में, है ना, उसका डायमीटर अधिक है. तो उस केस में क्या हम लोग यूज करेंगे, तो फिलर भी यूज करेंगे और बियरिंग प्लेट तो लगना ही है, Bearing है भी ना. use करेंगे. फिलर एंड बियरिंग प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विद कॉलम स्प्लाइस. ठीक है. देख लो यहाँ पर जिस तरीके से डायग्राम है ना. Wave crippling in beams generally occurs at the point where,
बताओ कहाँ पर लगता है? कंसंट्रेट लोड एक्ट। हाँ, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट करेगा उसी जगह पर हमारा वेव ट्रिपलिंग होगा, है ना। 4 से वापस आते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ए कॉलम स्प्लाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज, क्या होगा? The length of the column. Length of the column. हाँ, है ना, लेंथ ऑफ द कॉलम, ठीक है। The width of lacing bars in mm is kept. रिवेट डायमीटर के कितना टाइम्स होता है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, हाउ मच टाइम? 3 times. Three times, sir. ठीक है, अगर 18 mm है रिवेट डायमीटर तो क्या होगा विड्थ ऑफ लेसिंग बार? 50 mm. 18 mm है तब। Oh, 18 sir. 55. 55. है ना, 18 3 जा 54, तो नियरली 5 मल्टीपल क्या हो जाएगा? 5 का मल्टीपल क्या होगा? 55, तो 55 हो जाएगा। 16 mm होगा तो 50. सर 50। सर 50 हो जाएगा सर। 20 mm होगा तो 60। और अगर 60 सर। 22 mm होगा तो 65। 66. हाँ, तो यहाँ पर 5 का मल्टीपल भी देखना है ना, 3 टाइम्स हो और नियरली इक्वल टू 5 का मल्टीपल भी हो, है ना, तो इसलिए वो 65 Yes, होगा, यस सर। है ना। देखिए 3 टाइम्स दी नॉमिनल रिवेट डायमीटर। अच्छा, और ये जो डाटा है ये IS 800 1984 के हिसाब से है या IS 800 2007 के हिसाब से है? Sir, सर IS IS 2007 के साथ। 2007 के हिसाब से। ये दोनों में 2007 सेम सर। डाटा था, है ना। 1984 में भी यही डाटा था, ठीक है। IS 800 1984 में भी यही डाटा था और सेम डाटा कंटिन्यू हो गया IS 800 2007 में। मोस्ट ऑफ द डाटा जितना भी है कंप्रेशन मेंबर चैप्टर के केस में, ठीक है, वो IS 800 1984 और 800 2007 में सिमिलर है ना, मोस्ट ऑफ द डाटा। जहां जहां चेंजेस है वहां हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 26। When a load is exerted or transferred from one surface to another in contact, the stress is known as? bearing stress. Bearing stress. हाँ, जब कांटेक्ट में है और एक सरफेस से दूसरी सरफेस में जा रहा है तो वो बियरिंग स्ट्रेस का एग्जांपल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली ये हो जाएगा बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। When a load is exerted or transferred from one surface to another in contact, the stress is known as bearing stress. Clear है? Yes. Question number 27. The slenderness ratio of lacing bars should not exceed. 145. हाँ, मतलब अब तुम लोगों को एक आइडिया लग गया होगा ना कि किस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा होता है और क्या डाटा होता है Yes, sir. ना। और इन सब एग्जाम्स में कई बार जो है सो डाटा याद रखना इंपॉर्टेंट होता है ना। कॉन्सेप्ट तो कई बार ट्विस्ट तो करता है, लेकिन कई बार सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट वो रिपीट भी करता है, ठीक है। अब जैसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें स्लेंडरनेस रेशियो की बात हो रही होगी लेसिंग बार के केस में, तो वो 145 से अधिक नहीं होगा, है ना। वो 145 बिल्कुल कीवर्ड है ना, तो इसको ध्यान में रखना है तुम लोगों को। और तुम लोग देख भी रहे हो कि कई बार रिपीट भी हो रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। इफ 18 mm rivets are used in lacing bars, then minimum width of lacing bars should be? 3 गुना होता है सर। हाँ, अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कशन किया था 18 mm होगा तो क्या होगा? सर 55 मतलब। 55। हाँ, है ना। सर 55 18 होगा सर। हाँ, 18 3 जा 54 प्लस 1 55, है ना। ये किसी ने बोला था ना बीच में 50 बोला था, है ना। वो किसने बोला था? अच्छा, जिसने भी बोला था उस क्लियर हो गया ना कि वो हमको लगता है कि उस वक्त वो 16 सुन करके वो डाउट हुआ होगा, है ना। 50 बोले होंगे। Maybe. यस सर 16 सुनाई दिया था। हाँ, है।
चलिए तो 18 है तो 18 3 या 54 तो 55 हो गया। If a rolled steel flat designated as 55 ISF 12 mm is used as lacing, then minimum radius of gyration will be 3.46। ये कैसे निकाले? टी बाई रूट 12 होता ना, और टी का वैल्यू यहाँ 12 दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करके। वेरी गुड। सर एक बार बतला दीजिए ना ये। अच्छा ये कैसे है देखो, रुको एक मिनट, हाँ इसको बताते हैं। देखो सर ग्रुप में एक पिक भेज, क्या हुआ? सर ग्रुप में एक इसको पिक भेज देता हूँ, हो जाएगा क्लियर। अच्छा वो तो ठीक है, हाँ, रुक जाओ ना, प्रॉब्लम हम बोल रहे हैं इसको थोड़ा पतला करने के लिए, मतलब ये थोड़ा सा थीन हो, जो लाइन हम ये कर रहे हैं वो किस तरीके से होगा? सर कलर का ऑप्शन में होना चाहिए सर। ऑप्शन तो सर जो पेंसिल टाइप से है ना उसमें करना होगा उसको पतला के लिए। हाँ हुआ, चलो ठीक है। हाँ देखो आई इक्वल टू है ना, यहाँ पर जब आई सेक्शन है तो क्या हो जाएगा, एक तरफ से हो जाएगा बी, एक तरफ हो जाएगा डी क्यूब बाई 12 हो जाएगा, और यही इक्वल होगा किसके, ए आर स्क्वायर के। ये पॉइंट सभी को क्लियर है ना? किस से? यस सर। है ना, बी डी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, ए आर स्क्वायर के, ठीक है। और यहाँ पर है ना, तो अब यहाँ पर एरिया का जब हम देख रहे हैं कौन सा एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वो आएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन, है ना, वो हो जाएगा बी इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो बस वहां से अगर तुम इसको कैलकुलेट करो, अगर हम मान लो बी इंटू डी रखते हैं ए के जगह पर, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से ये कैंसिल आउट होके ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये जो आर है, या ये आर का वैल्यू हो जाएगा, तो रूट अंडर में तो डी स्क्वायर से क्या हो गया, तो डी बाहर निकल गया बाई रूट अंडर 12। यस सर। ठीक है ना, आर इक्वल टू डी अपॉन रूट अंडर 12। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ से हमको मिल गया आर मिनिमम के लिए फॉर्मूला आ गया। आई सेक्शन के केस में क्या आ गया, ये हमारा आ गया टी अपॉन रूट अंडर 12, ठीक है। तो आई सेक्शन नहीं, सॉरी, वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, तो जो कि फ्लैट का एग्जांपल है, तो यहाँ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, तो ये आ गया आर इक्वल टू डी अपॉन रूट अंडर 12, ठीक है। यहाँ पर जो डी है वो क्या है, उसका थिकनेस होगा, ठीक है। तो थिकनेस यहाँ पर कितना है, थिकनेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, तो 12 बाई रूट अंडर 12, और उसको अगर 12 बाई रूट अंडर 12 करेंगे तो वो हो गया बेसिकली रूट अंडर 12, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3.46। हाँ, अगर मान लो 9 होता तो 3 होता, है ना, 9 होता तो 3 होता, 16 होता तो 4 होता, तो 3 और 4 के बीच में जो भी होगा। अब ऑप्शन में हम देख लेंगे 3 और 4 के बीच में है क्या ऑप्शन कोई, अच्छा 3 और 4 के बीच में 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये 12 जो है 9 से ज्यादा करीब है, यानी कि 3.5 से थोड़ा पहले होगा, ऐसा कुछ।
बाकी तुम लोग कैलकुलेशन तो अगर मान लो कि जो वहां पर अगर कर सको तो ठीक है, अदरवाइज ये जो हम लोग को गेस करना होता है कई बार, तो इस तरीके से ही तुम करोगे, है ना। यस सर। अगर मान लो ये रूट अंडर 15 होता ऐसा कुछ, और हमको इन 4 ऑप्शन में से एक चुनना होता, तो हम देखते हैं ना कि वो 16 के थोड़ा सा करीब है ना, तो 4 से नजदीक कौन सा है, तो 3.8 है, तो 3.8 करते आंसर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। नो सर। गुड। गजानन तुमको ये पता था ये कैसे आया था आर का वैल्यू d/√12? यस सर, ऑफलाइन क्लास में बुक में पढ़े थे सर ये। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 30, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लेसिंग बार with the longitudinal axis of the column should preferably be between, बताओ। 40 to 70 40 to 70 सर। है ना, हाँ 40 to 70 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, सर वो इस जो तरीके से एंगल। होगा ना, यस सर। इस तरीके से अगर ये कॉलम सेक्शन है तो ये जो एंगल है दिस वन इज थीटा, और ये थीटा होगा 40 to 70 डिग्री। The effective length of battend column is increased by 10%। 10%. good. The buckling load in a steel column is related to length directly proportional to slenderness ratio। स्लेंडरनेस रेशियो जिसका अधिक होता है, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लेंडरनेस रेशियो, नॉन लिनियरली लिनियरिटी ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो। क्या होगा आंसर बताओ। सर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल Inversely proportional to slender ratio. कैसे पहुंचे इस कंक्लूजन पे। सर यूलर्स इक्वेशन वहाँ ये फाइंड करते थे सर। formula से। PCR इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव स्क्वायर। एल इफेक्टिव। यस सर यही। तो इसमें स्लेंडरनेस रेशियो कहाँ है। सर एल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो L इफेक्टिव बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। Yes sir, L effective by R. सर एल इफेक्टिव का फॉर्मूला से एल इफेक्टिव इज इक्वल टू ये कर सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन इनटू स्लेंडरनेस रेशियो। इसको लिख नहीं, सकते हो स्लेंडरनेस रेशियो का फार्मूला से होता है ना, L इफेक्टिव बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। आर मिनिमम लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या। यस सर। सर अच्छा। ऐसे नहीं सोच रहे, जैसे स्लेंडरनेस रेशियो का फार्मूला होता है ना, L इफेक्टिव सर बाय हम ऐसे रेडियस ऑफ बोलते हैं। ठीक सर है, हम यही स्लेंडरनेस रेशियो हुआ L इफेक्टिव बाय R मिनिमम, ठीक है। यस सर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ स्लेंडरनेस रेशियो। यही फार्मूला से रिलेट कर। ओके, हाँ 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 बिल्कुल, है ना। तो देखो यहाँ पर यही कंडीशन है ना, L इफेक्टिव स्क्वायर की जगह लैम्डा इंटू R का होल स्क्वायर कर रहे हैं, यही Yes. ना। हाँ, तो यहाँ पर Yes, लैम्डा yes. स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो PCR और लैम्डा के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली है डायरेक्टली है। इनवर्सली है। इनवर्स। हाँ, तो इनवर्सली Inversely, sir. प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। गुड। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर अनस्टीफन्ड फ्लैंज of a beam in flexural compression, the maximum allowable outstand is equal to। सर ये ये डाटा नहीं याद कर लेना है ना, 20 टाइम्स T होता है। सर कैसे।
कैसे सर? कैसे नहीं, कुछ डाटा याद भी करना होगा। कोई ये होना चाहिए ना सर कि ऐसा ऐसा देखो situation है। आईएस कोड में, ठीक है ना, जो भी डाटा होता है, ठीक है, आईएस कोड बार बार रिवाइज क्यों होते रहता है? सर तो सर इसको आईएस कोड कहाँ मिलेगा ये? ये अच्छा आईएस कंडीशन कोड है। नहीं नहीं, तो ये कंडीशन भी तुमको आईएस कोड में मिलेगा, तुम ढूंढो कंप्रेशन मेंबर में ढूंढो, यस सर। ठीक है, सारा कंडीशन वहां पर मिलेगा इस तरह का। अनस्टिफनेस फ्लैंज ना सर? हाँ ठीक है ना, सर। अनस्टिफन्ड फ्लैंज यानी वो नॉर्मल फ्लैंज है, उसमें किसी भी तरह का अलग से स्टिफनर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो भी होता है ना, आईएस कोड क्यों बार बार रिवाइज होता है, क्योंकि वो क्या है, वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, है ना, लिखा गया कोड है कि हाँ यही सही होना चाहिए, यही ठीक होना चाहिए, है ना। उसमें कुछ भी ऐसा लॉजिक, मतलब ठीक है, हम लॉजिक अगर को भी ध्यान में रख करके, ताकि वो लोग काफी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर होते हैं, ठीक है, जो लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में काम करते हैं और उसके बाद आईएस कोड वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है। तो वो लोग उन लोगों के पास भी मतलब वो एक्सपीरियंस है, लॉजिक है, सब कुछ है, लेकिन उन सब लॉजिक को अगर हम लॉजिक से कुछ चीजों को समझ ले तो अच्छी बात है, लेकिन सभी बातों को समझ नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डाटा दे दिया कि हाँ ये ठीक लग रहा है, यही ठीक ठाक होना चाहिए, यही मैक्सिमम सबसे अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, है ना, जो सबसे अच्छे रिजल्ट के मैक्सिमम क्लोज यही डाटा है, इसी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो हमें उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से चलना है, ठीक है, हमें उस डाटा को याद करना है। यस। The compression member always tend to buckle in the direction of, सर नेक्स्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। जिस एक्सिस के अलोंग जो है रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम होगा ना, उसी के अलोंग हमारा मेंबर क्या होगा, बकल करेगा, बकल ठीक है? करेगा। Effective length of a column effectively held in position and restrained in direction at one end, but neither held in position nor restrained in direction at the other end. क्या होगा इफेक्टिव लेंथ? 12 सर है ना, इज फ्री केस है, कौन सा है, other end वन is एंड इज fixed. फिक्स, अनदर एंड इज फ्री। फ्री Question number 36. A compression member consisting of angle sections may be continuous member, discontinuous single angle strut, discontinuous double angle strut. All options are correct. ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर चलो ठीक है। If the area of cross section of a single angle discontinuous strut is 30 centimeter square and allowable working stress corresponding to its slenderness ratio is इतना, the safe load carrying capacity of the member is. Question number 37 क्या होगा? सर स्ट्रेस इनटू एरिया करो। हाँ है ना, एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्ट्रेस कितना है 625 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पर वो कौन सा कंडीशन है वो देखेंगे। तो इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है ना, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है, तो यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है, वो 80% होगा, है ना, 0.8 टाइम्स कर लेंगे। यस सर। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी A into 0.8 times sigma AC.
30 into 0.8 into 625 है ना, तो 15,000 kg और ठीक है ना। तो वो जो sir. पीडीएफ नोट्स का उसमें था ना ये सब पॉइंट, याद आ रहा? हाँ सर। If the depth of two column sections are equal, then the column splice is provided. With filler plate, with bearing plate. सर none of these. हाँ? None of these होगा। तो कैसे करेंगे फिर? सर दोनों इक्वल है तो फिर सर दोनों इक्वल है तो फिलर नहीं होगा और तो बियरिंग कैसे होगा? ना फिलर होगा ना ही बियरिंग होगा, है ना। और ठीक है, थर्ड सीधा में क्या है? प्लेट लगाएंगे और स्प्लाइसिंग कर लेंगे। ये क्या है क्वेश्चन? When a tension member is made of 4 angles with a plate as wave, the allowance for hole is made as. ये टेंशन मेंबर का क्वेश्चन इसमें क्यों? सर क्वेश्चन समझ में नहीं। कोई नहीं, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लिया तो आंसर भी हम लोग रीड करते हुए चलते आगे बढ़ते। When a tension member is made of 4 angles with a plate as wave, the allowance for holes is made as. क्या होगा आंसर? 1 hole for each angle and 2 hole for wave, है ना। हर एक एंगल में एक होल और वेव में 2 होल। ओके, कुछ इस टाइप से बोल रहा है, बीच में वेब प्लेट हो गया, इधर एंगल सेक्शन made of 4 angles with a plate as wave. चलिए ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए लॉन्ग कॉलम इज। Length of column divided by length of रेडियस ऑफ गायरेशन। जो हम लोग को सीधा सीधा पता है, फार्मूला होता है ना, लैम्डा यस इक्वल सर। टू एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। If the moment of inertia of a section about its axis is I, moment of inertia of a section about its axis is I, and its effective sectional area is A, its radius of gyration R about the axis is. रूट r is equal to root under I by a। रूट आई हाँ। रूट आई बाई ए। हाँ, तो रूट अंडर I by A ये कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में है ना, R इक्वल टू रूट अंडर I by A। Allowable working stress corresponding to slenderness ratio of double angle placed back to back and connected to one side of a gusset plate is reduced to 80% सर। 80% sir. 80%। है ना। अभी भी हम लोगों ने देखा था 0.8 टाइम्स सिग्मा AC। According to IS 800-1971, lacing बहुत bar resist transfer shear equal to सर 2.5 एक्सियल लोड IS 2.5 800 2007 के हिसाब से। मतलब ये देख रहे हो ना कि ये क्यों ट्विस्ट किया गया है। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछ रहा है एग्जाम में, मतलब वो क्या टेस्ट कर रहा है कि आप ये 71 देख करके कहीं घबरा तो नहीं जाते हो, है ना। क्योंकि ये डाटा IS 800-1971 में, IS 800-1984 में और IS 800-2007 तीनों में सेम है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा डाटा पूछ रहा है जो 84 से पहले का पूछ रहा है, हाँ, तो इसका मतलब है कि वो वही डाटा पूछ रहा होगा जो 2007 में सेम होगा। ठीक है, तो हमें आंसर IS 800-2007 के हिसाब से देना है। चेंज भी तो हो सकता है। हम्म, चेंज भी तो हो सकता है। क्या हो सकता था? चेंज नहीं, अगर चेंज होगा तो वो डाटा अभी वो उस डाटा पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना अभी। ठीक है, क्योंकि वो फिर इररिलेवेंट हो जाए। अगर 1971 से क्वेश्चन अगर आज के डेट में आईएस पूछ कोड भी रहा चेंज हो जाएगा ना सर? हाँ ऑब्वियसली। देखो ना, ये क्वेश्चन किस साल का है?
ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में पूछा गया है, ठीक है। तो 2017 में ही अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और अगर डाटा अलग होगा तो फिर ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो गया ना, यस ठीक है। इस क्वेश्चन का रिलेवेंसी तभी बना रहेगा जब इसका डाटा बिल्कुल सिमिलर हो 2007 के हिसाब से भी। चलो ठीक है, अब तो टाइम हो गया है ना। यस सर। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकेंगे। इसको जल्दी से जल्दी है ना आप लोग खुद से रिवीजन करके कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर यहीं पर Okay, रोकते हैं sir. क्लास को, है ना। एंजॉय योर सिविल इंजीनियरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, sir. Thank you, sir. सर Thank you, sir.